नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एस इक्वल टू क्या, W1 W2 W3 डॉट 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 दियर सैंपल स्पेस एसोसिएटेड टू रैंडम एक्सपेरिमेंट, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब Wn that is equal to probability of W minus n minus 1 by 2 for n greater or equal to 2, and A equal to 2k plus 3l, kl belongs to n, and B equal to Wn, n belongs to A. Find the value of probability of B. Okay, find the value of probability of B. क्या क्या गिवन दिया, W1 W2 ओमेगा 1 ओमेगा 2, ऐसे W1 W2 W3 है ना, ऐसे मैं W1 W2 W3 बोल रहा हूँ यहाँ पे। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ Wn माइनस 1 अपॉन 2। ए दिया है 2k प्लस 3l, के और एल नेचुरल नंबर है, और बी दिया है Wn, उसमें n बिलोंग्स टू क्या, ए, n बिलोंग्स टू ए मतलब ये 2k प्लस 3l रहेगा। तो ये मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट है, जैसे 1 1 पुट कर दिया तो 5 है ना, मतलब ये 5 है, बिलोंग्स टू ए आना चाहिए ना, और के इक्वल टू 1 1 1, पहले तो 1 1 ही पुट करने थे बस, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो स्टार्टिंग विथ 5 है ना, ए में अभी देखते हैं यहाँ पे दिए होंगे सॉल्यूशन में, ठीक है। अभी देखो, द प्रॉब्लम डिफाइन सैंपल स्पेस एस, दिस आर गिवन, they indicates that indices n for Wn are natural numbers starting from 1, that n belongs to 1 2 3 dot dot dot, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। Determine the probability P of Wn for each elementary event. The probability of the elementary event are given by probability of Wn equal to probability of Wn minus 1 upon 2, that is n is greater or equal to 2. Probability of W1 equal to P1 लिया, तो we can express probability of W1 in terms of P1। तो probability of W1 P1, probability of W equal to probability of W1 by 2 मतलब P1 by 2। W3 क्या हो जाएगा, probability of W2 by 2 मतलब P1 by 2 by 2 मतलब P1 by 4। ऐसे ही अगर n तक गए तो probability of W1 क्या हो जाएगा, P1 upon 2 to the power n minus 1, है ना। जैसे ये हो गया ना, ये 2 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर, 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते नहीं, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 स्क्वायर आता, ऊपर में 2 आता, तो यहाँ पे n डालेंगे तो ऊपर में पावर क्या आएगा, n minus 1, that is n greater or equal to 1। The sum of the probabilities of all the elementary events in a sample space must equal 1, मतलब summation n equal to 1 to infinity probability of Wn equal to 1। Substitute the expression for probability of Wn into the sum n equal to 1 to infinity p1 upon 2 to the power n minus 1 equal to 1। This is an infinite geometric series with the first term a equal to p1, where n equal to 1, p1 to the p1 upon 2 to the power 0 equal to p1, and a common ratio r equal to 1 by 2. The sum of an infinite geometric series is given by the formula a upon 1 minus r, provided that mod r less than 1। So here mod 1 by 2 less than 1 है ना, क्योंकि r की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, r is 1 by 2, here 1 by 2 is less than 1, so the sum converges p1 upon 1 minus 1 by 2, 1 minus r है ना, तो दिस इज इक्वल टू 1 मतलब p1 upon 1 by 2, दैट इज p1 upon 1 by 2 क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1। सो 2p1 इक्वल टू 1 मतलब p1 इक्वल टू क्या था, 1 by 2। ये नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था, यहाँ से ऐसे नेक्स्ट लाइन में इक्वल टू 1, उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट लाइन में चाहिए था p1 इक्वल टू 1 by 2, ऐसे ये भी नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था, ये नहीं है। anyway, देखो p1 की वैल्यू 1 by 2 आ गई, ये कैसे, सम ऑफ द पॉसिबल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द इवेंट इन सैंपल स्पेस मस्ट इक्वल टू 1, मतलब ये पूरी की सम क्या आएगी 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की पूरी सम, तो ये हो गया p1 अपॉन 2 टू द पावर n minus 1 इक्वल टू 1। अभी ये क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज होगी विद फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू क्या है, p1 दिया, n इक्वल टू 1 मतलब व्हेन n इक्वल टू 1 p1 2 टू द पावर 0 इक्वल टू p1 हो जाएगा ना, एंड कॉमन रेशो का दिया 1 by 2, तो r इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r है ना, ये अपन तो p1 इक्वल टू 1 by 2 हो गया। The probability of each elementary event is probability of W1 equal to 1 by 2 upon 2 to the power n minus 1. So 1 upon 2 into 2 to the power n minus 1 equal to 1 upon 2 to the power n. Step 2. Identify the elements of the set A. The set is defined as A equal to 2k plus 3n. A set ये दिया, मतलब A n is a set of natural number। मतलब देखो यहाँ the smallest possible value for 2k plus 3l, k equal to क्या पुट करेंगे 1, so minimum value क्या होगी 2k, that is 2 into 1 equal to 2। तो मिनिमम वैल्यू फॉर एल इक्वल टू 1, सो मिनिमम वैल्यू क्या होगी उसकी 3l, मतलब 3 into 1 3,
तो स्मॉलेस्ट सम क्या हो गया उसका 2 into 1, क्योंकि मिनिमम वैल्यू दोनों इसके नेचुरल नंबर 1 डालना पड़ेगा ना। तो 2 into 1 + 3 into 1 दैट इज 5। 5 बिलोंग्स टू क्या हो गया, ए। दिस इज द स्मॉलेस्ट सम। दिस implies the integer less than 5, 1, 2, 3, 4 are not in A, है ना। 5 आर नॉट इन, लेस देन 5 आर नॉट इन, मतलब लेस देन 5 मतलब 1 2 3 4 ये चारों ए में नहीं आएंगे। लेट्स चेक द स्मॉलेस्ट इंटीजर टू सी इफ दे आर इन ए और नॉट। n इक्वल टू 5 पुट किया, 2 into 1 3 into 1 दैट इज इक्वल टू 5, सो 5 बिलोंग्स टू ए। n इक्वल टू 6, सो kl ग्रेटर और इक्वल टू 1, सो 2k + 3l इक्वल टू 6, मतलब l इक्वल टू 1 डालना पड़ेगा, मतलब 2k + 3 1 इक्वल टू 6, मतलब 2k इक्वल टू 3 विच हैज नो इंटीजर सॉल्यूशन फॉर k। If L is greater or equal to 2, 3L is greater or equal to 6, which means 2k plus 3L greater than 6 for k greater है, मतलब the 6 does not belongs to A। 6 नहीं आएगा, क्योंकि दूसरा भी नेचुरल नंबर ही आना चाहिए ना। जैसे L को अगर 1 सेट किया तो K भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए। N इक्वल टू 7 डाला तो 2 into 2 + 3 into 1 7, यस 7 बिलोंग्स टू A। N इक्वल टू 8 डाला, 2 into 1 + 3 into 2 8, मतलब दोनों नेचुरल नंबर K और L। 8 9 डाला, 10 डाला, यस 10 बिलोंग्स टू A, मतलब n इक्वल टू 10। ओके, n इक्वल टू 10, 10 belongs to A, so determine all the elements of A। we observe the pattern for integer n greater or equal to 5। तो देखो n is a natural number, n is greater or equal to 8, let n equal to 2m डाला, we want 2k plus 3l equal to 2m, choose l equal to 2, तो 2k plus 3 into 2 equal to 2m, मतलब 2k plus 6 equal to 2m, मतलब 2k equal to 2m minus 6, तो k equal to m minus 3, so n is greater or equal to 8 डाला तो 2m क्या हो गया, greater or equal to 8, मतलब m is greater or equal to 4, मतलब m is greater or equal to 4, k equal to m minus 3 है, that is greater or equal to 4 minus 3, that is equal to greater or मतलब k is greater or equal to क्या हो गया 1। since k greater or equal to 1, l equal to 2 greater or equal to 1, all even numbers n greater or equal to 8 are in A, है ना। मतलब पूरे के पूरे जो इवन नंबर है n ग्रेटर और इक्वल टू 8 आर इन ए रहेगा। नेक्स्ट n इज अ ऑड नंबर है, मतलब n इज ग्रेटर और इक्वल टू 5 सपोज। ओके, तो इसके लिए देखो लेट n इक्वल टू 2m प्लस 1, वी वांट 2k प्लस 3l, तो 2m प्लस 1 हो जाएगा ऑड। l इक्वल टू 1 सेट किया तो 2k प्लस 3 इंटू 1 दैट इज 2m प्लस 1, मतलब 2k प्लस 3 इक्वल टू 2m प्लस 1, 2k इक्वल टू 2m माइनस 2 दैट इज k इक्वल टू m माइनस 1। n क्या ग्रेटर और इक्वल टू 5 सेट किया है ना, इसके हिसाब से वो ऑब्जेक्ट पार्टेड इंटीजर फॉर n इज ग्रेटर और इक्वल टू 5, n इज ग्रेटर और इक्वल टू 5 के बाद नहीं इवन वाला ने क्या 8 लिया, क्योंकि 5 के ऊपर तो ये ट्रू होता है ना, 5 बिलोंग्स टू। उसके बाद 7 आ रहा है, 6 तो नहीं आ रहा है, इसलिए पहला चेक किया अपन ने n इज ग्रेटर और इक्वल टू 8 फॉर इवन नंबर, और ये ऑड के लिए n इज ग्रेटर और इक्वल टू 5। तो ये सॉल्व करने के बाद देखो ये पूरा देखो 2m ग्रेटर और इक्वल टू 1, मतलब m ग्रेटर और इक्वल टू 2, मतलब k m माइनस 1 है, ग्रेटर और इक्वल टू 2 माइनस 1 1, k ग्रेटर और इक्वल टू 1 आता है, मतलब l इज इक्वल टू 1 ग्रेटर और इक्वल टू 1, ऑल ऑड नंबर n ग्रेटर और इक्वल टू 5 आर इन ए। क्लियर है, मतलब n इज ग्रेटर और इक्वल टू 8, उसके पूरे इवन नंबर ए में आएंगे, n इज ग्रेटर और इक्वल टू 5 के पूरे बड़े नंबर ए में आएंगे। सो कंबाइनिंग दिस टू ऑब्जर्वेशन द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल नेचुरल नंबर n ग्रेटर और इक्वल टू 5 एक्सेप्ट n इक्वल टू 6, तो 5 7 8 9 पूरे के पूरे आएंगे, सिर्फ n इक्वल टू 6। द इंडेक्सेस n देयर आर सैंपल स्पेस s, तो ये सैंपल स्पेस w1 w2 w3 बट नॉट आर नॉट इन a, आर एन ए इक्वल टू 1 2 3 4 6, ये टोटल 5 हो गए, ये एन ए हो गए, बट नॉट इन ए, नॉट इन ये हो गया। अभी देखो कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी क्या है वहाँ पे, बी दिया है डब्ल्यू और एन बिलोंग्स टू ए, मतलब W5 W7 W8 W9 ये दिए। इट इज ओपन इजियर टू कैलकुलेट दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट इवेंट, बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना आसान है, क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ये एलिमेंट्स है कितने हैं 1 2 3 4 5, है ना। तो देखो इसके लिए बी कॉम्प्लीमेंट डब्ल्यू एन एन डज नॉट बिलोंग्स टू इट, देन यूज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट मतलब समेशन एन बिलोंग्स टू दिस एन ए,
प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 मतलब क्या हो गया, यूजिंग द इंडाइसेस एन ए 1 2 3 4 6 है जो अपने यहाँ पे बताया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 क्या गया, 1/2 टू द पावर n है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 क्या है, दैट इज 1/2 टू द पावर n डिटरमाइन इन स्टेप 1। ये ये ना प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 और तरीके लिखा है क्या? हाँ ये प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इक्वल टू 1/2 टू द पावर n। ये तो P1 है, P1 की वैल्यू 1/2 पुट करने को दिया है। सही है, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ W1, इसका यूज करेंगे। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ W1, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 किधर है, ये W1 मतलब 1/2 टू द पावर n है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, W1 W2 W3 W4 W6 मतलब 1/2 टू द पावर 1 2 टू द पावर 2 2 टू द पावर यहाँ पे 3 है, 2 टू द पावर 4 और 2 टू द पावर 4 के बाद 2 टू द पावर 6। पूरे इसका सम करने के बाद कितना था, 61/64। तो फाइंड द कॉमन डिनोमिनेटर, देखो 64 लाएंगे, 64 है किसमें, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय करेंगे 32, यहाँ पे 16 से, यहाँ पे 8 से, यहाँ पे 4 से, तो 64 पूरा डिनोमिनेटर कॉमन आएगा। 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1 61/64। ये होगी किसकी प्रोबेबिलिटी, बी कॉम्प्लीमेंट की। लेकिन अपने को प्रोबेबिलिटी बी की निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी इवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 माइनस 61/64 मतलब 64 माइनस 61/64, तो 3/64 is the final answer. 3/64 is the final answer of this question.